عید الاضحیٰ میں آمد مویشی منڈیوں میں رش بڑھ گیا۔ منڈی میں خوبصورت نسل کے جانوروں کی بھرمار، 2 سے 5 من کے بڑے جانور خریداروں کی توجہ کا مرکز۔ دن کے اوقات میں سناٹا، شام کو منڈی میں رش۔ بیوپاریوں کو جلد فروخت کی امیدیں۔ قربانی کے جانوروں کی قیمتیں 2 لاکھ سے 8 لاکھ تک پہنچ گئیں۔ مویشی مالکان کا چارہ مہنگا، اخراجات زیادہ ہونے کا بہانہ۔ قربانی کے لوازمات کی مارکیٹ بھی گرم۔ مڈی، چٹائی، چھری، کلہاڑی کی مانگ میں اضافہ۔ شاپر کے دام بھی آسمان پر جا پہنچے۔ 400 میں ملنے والے شاپر 700 روپے کلو پہنچ گئے۔ نیو کراچی سیکٹر 11 آئی مویشی منڈی کے خلاف تنازعہ شدت اختیار کر گیا۔ رہائشیوں نے منڈی کو غیر قانونی قرار دے دیا۔ ٹاؤن میونسپل کارپوریشن نیو کراچی کو قانونی نوٹس ارسال کر دیا۔ شہریوں کا موقف ہے کہ رہائشی آبادی، اسکول اور اولڈ ایج ہوم کے قریب مویشی منڈی کے قیام سے ماحولیاتی آلودگی کا سبب بنے گا۔ ٹریفک، سیکیورٹی اور صفائی کے سنگین مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ بھرتی اساتذہ کے اسناد کی تصدیق کا عمل تاخیر کا شکار۔ ڈائریکٹر جنرل ہیومن ریسورسز مانیٹرنگ ایولیوشن نے نوٹس جاری کر دیا۔ 5 ڈویژنل ڈائریکٹرز کو خط ارسال کر کے سختی سے ہدایت کر دی، فوری طور پر 2 روز کے اندر اسناد کی تصدیق کر کے رپورٹ دی جائے۔ رپورٹ نہ ہونے پر قانونی کارروائی کا آغاز کیا جائے گا۔ وفاقی وزارت تجارت کا بڑا فیصلہ، ایران سمیت وسیع ایشیائی ریاستوں کو آم کی برآمداتی 4 ماہ کے لیے شرط ختم کر دی گئی۔ استثنا 1 جون 2026 سے 30 ستمبر 2026 تک مؤثر رہے گا۔ اسٹیٹ بینک کے فارن ایکسچینج قواعد میں عارضی نرمی کر دی گئی۔ PFVA نے وزارت تجارت کے اقدام کا خیر مقدم کیا۔ کل شارع بھٹو عوام کے لیے کھول دیا جائے گا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو شارع بھٹو کا افتتاح کریں گے۔ قیوم آباد سے بندرگاہ تک روڈ کا کل سنگ بنیاد رکھا جائے گا۔ سندھ کابینہ اجلاس کے بعد سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن کی بریفنگ، کہا FWO کو ہنگامی بنیادوں پر منصوبہ سونپنے کی منظوری دی گئی۔ سندھ کابینہ کا ماہی گیروں کو معاشی ریلیف دینے کا فیصلہ۔ کراچی BRT ریڈ لائن منصوبے کی تعمیر تیز کرنے کی منظوری۔ ترقیاتی کام میں تاخیر اور ناقص کارکردگی پر پرانا کانٹریکٹ منسوخ کرنے کا فیصلہ۔ شارع بھٹو ہے وہ کل پبلک کے لیے کھول دی جائے گی۔ کل اس کا جو ہے افتتاح چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہے کل 4 بجے اس کا افتتاح کریں گے۔ اس کے بعد جو ہے یہ سڑک جو ہے M9 ہائی وے ہے اس تک جو ہے وہ قیوم آباد سے سٹارٹ ہوگی، M9 ہائی وے تک چلے گی یہ، اور لوگوں کو جو ہے اس کے علاوہ جو سفری ٹائم ہے ان کا وہ بہت زیادہ بچے گا۔ 11,500 بلدیہ عظمیٰ کراچی کے ملازمین کو ہیلتھ انشورنس دینے کا فیصلہ۔ میئر کراچی مرتضیٰ وہاب نے خوشخبری سنا دی، کہا 200 اسپتالوں میں علاج کی سہولیات میسر ہوں گی۔ ملازمین 1.5 لاکھ سے 6 لاکھ تک میڈیکل کی سہولیات سے استفادہ حاصل کر سکیں گے۔ میڈیکل کارڈ کا اجرا کر دیا گیا۔ شہری ہو جائیں ہوشیار، عید پر سورج رہے گا سر پر سوار۔ ماہر موسمیات عائشہ کنول نے خبردار کر دیا، شہری بلا ضرورت گھروں سے نہ نکلیں، باہر نکلتے وقت سر ڈھانپ لیں، ٹھنڈے مشروبات کا استعمال کریں۔ ماہرین کا احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا مشورہ۔ ماہی گیروں کے لیے اچھی خبر، 15 روزہ نرمی دینے کا فیصلہ۔ ترجمان وزیر اعلیٰ سندھ کے مطابق 1 جون سے 15 جون 2026 تک ماہی گیری کی اجازت ہوگی۔ کابینہ نے فیصلہ کیا، آبی حیات کے تحفظ کے لیے ماہی گیری پر موسمی پابندی برقرار رہے گی اور 15 جون کے بعد ماہی گیری پر مکمل پابندی دوبارہ نافذ ہوگی۔ گلشن حدید اور اسٹیل ٹاؤن میں پانی کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، میئر کراچی نے خوشخبری سنا دی۔ پپری پمپنگ اسٹیشن پر نئے پمپس کی تنصیب کے کام کا جائزہ لیا، کہا گلشن حدید میں 3.5 کلومیٹر کی پانی کی لائن ڈالی گئی، 50 لاکھ گیلن پانی کی سپلائی ممکن ہوگی۔ سندھ کابینہ نے ترقیاتی اور انتظامی فلاحی منصوبوں کی منظوری دے دی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا اہم اجلاس۔ وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ نے فائنانس کمیٹی کی سفارشات کابینہ میں پیش کی۔ فائنانس کمیٹی نے 91 کروڑ 61 لاکھ 40 ہزار روپے سے زائد اضافی گرانٹ منظور کر لی۔
वज़ीर सिंध ने हिदायत की तरक्याती मंसूबों की बरवक्त और मयारी तकमील यकीनी बनाई जाए। गंदम खरीदारी और ज़रिए हिकमत अमली से मुतालिक अहम फैसले मंजूर। फी एकड़ 500 किलोग्राम गंदम बोरियों की शर्त में रियायत की मंजूरी दे दी। ब्रीफ किया, गंदम की बोरियों में रियायत का मकसद आबादगारों को माली रिलीफ फराहम करना है। सिंध हुकूमत 5 अरब 62 करोड़ रुपए से ज़ायद की अदायगियाँ कर चुकी है। खुसूसी तालीम में सिंध की क़यादत का एतराफ़ तारीख़ी पेशरफ्त है। शर्जील इनाम मेमन का एक्स पर पैगाम, कहा वफाकी हुकूमत ने मंसूबे की तकमील के लिए सिंध से मदद मांग ली। DEPD डिपार्टमेंट को वफाकी हुकूमत के साथ मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत की मंजूरी दे दी गई। खुसूसी अफराद के निगहदाश्त सिंध जामे मॉडल को हुकूमती कौमी सतह पर तस्लीम किया जा रहा है। ट्रैफिक पुलिस एहलकारों के लिए जदीद महारत के लिए क्लिफ्टन लाइसेंस ब्रांच में वर्कशॉप। DIG ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह बोले, अभी भी हमारे अच्छे ऑफिसर सड़कों पर ही ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। हर माह हमारे 100 से ज़ायद ऑफिसर्स मुख्तलिफ कोर्सेज कर रही हैं। कराची पुलिस चीफ आज़ाद खान का कहना था कि मैं जब लोगों से पूछता हूँ तो ये राय आती है कि एहलकारों का रवैया सही नहीं है। हमने पुलिस के रवैयों को बेहतर करना है। चोरी के केसेस पर पुलिस और इंतजामिया की सख्त कार्रवाइयाँ। कौमी असासों की हिफाजत के लिए ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी मौसर साबित। स्टील मिल्स में 9 माह के दौरान 112 मुकदमा दर्ज। पुलिस ने 62,643 किलो चोरी शुदा सामान बरामद कर लिया। चोरी में मुलव्विस 445 अफराद कानून के शिकंजे में। चोरी के नेटवर्क में मुलव्विस मुतादिद अफसरान और मुलाजमीन भी गिरफ्तार। कराची एयरपोर्ट कस्टम्स की कार्रवाई। अरबों का एयर कार्गो स्कैंडल बेनकाब। जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कीमती इलेक्ट्रॉनिक्स की स्मगलिंग का नेटवर्क पकड़ा गया। रिपोर्ट के मुताबिक जाली गेट पासेस के जरिए आईफोन, लैपटॉप, मैकबुक, आईपैड गैर कानूनी तौर पर क्लियर किए जा रहे थे। 22 करोड़ 10 लाख ड्यूटी और टैक्स रिकवरी का हुक्म। मुतादिद अफसरान और अहलकार ज़ेर तफ्तीश। इम्तिहान में नकल करने वाले अब नहीं बचेंगे। जिना गवर्नमेंट कॉलेज में नकल की रोकथाम के लिए इंतजामिया का मुनफरिद इक़दाम। इम्तिहानी मरकज़ के गेट पर स्कैनर के जरिए तलबा की तलाशी। स्कैनर की मदद से मोबाइल फ़ोन फौरी पकड़े जाने लगे। इंतजामिया का कहना है कि इम्तिहान शफाफियत यकीनी बनाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है। बच्चों ने ऐसी जगहों पर मोबाइल छुपाए होते थे, तो हमने कहा कि नहीं, ऐसा फिर सिस्टम किया जाए कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट खरीदे जाए। तो हमने अपने बजट से इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खरीदे हैं और बहुत आसानी से तलाशी हो जाती है और मोबाइल फ़ोन डिटेक्ट हो जाता है। आलमी महंगाई के असरात कारोबारी सरगर्मियों पर पड़ रहे हैं। बजट के टैक्स अहदाफ हासिल करना मुश्किल होगा। साबिक सदर पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन कादिर मेमन का सुपर टैक्स खत्म करने का मुतालबा। कहा, वज़ीर आज़म की तरजीह सुपर टैक्स का खात्मा है। NFC एयरपोर्ट पर नज़रसानी होनी चाहिए। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल पुलिस की जुर्म पेशा अनासर के खिलाफ मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ। कार लिफ्टर, हवाई फायरिंग में मुलव्विस मुल्जिमान और गुटका मावा फरोशों को गिरफ्तार कर लिया। तैमूरिया पुलिस ने मुल्जिम ज़हूर अहमद को गिरफ्तार करके मनसूखा सुजुकी ऑल्टो बरामद कर ली। रिजविया पुलिस ने हवाई फायरिंग में मुलव्विस मुल्जिम ईद मोहम्मद को गिरफ्तार किया। न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया पुलिस ने भी गुटका फरोश गिरफ्तार कर लिया। सुपर मार्केट पुलिस ने मावा फरोश मोहम्मद रेहान को दबोच लिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी। लांडी जोगी मोड़ सिंधी सोसाइटी के करीब कोच की मोटरसाइकिल को टक्कर। कोच की टक्कर से बाइक सवार खातून जाँ बहक खातून की लाश को जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कोच को पुलिस ने तहवील में ले लिया। वाक़े की मज़ीद तहकीकात जारी। मुनशियात स्मगलिंग के खिलाफ घेरा तंग। ANF का मुख्तलिफ शहरों में क्रैकडाउन। 7 कार्रवाइयों में नाइजीरियन खातून समेत 7 मुल्जिमान गिरफ्तार। तकरीबन 3.25 करोड़ मालियत की 200 किलो से ज़ायद मुनशियात बरामद। कोरंगे से मुल्जिम गिरफ्तार। 1 किलो से ज़ायद चरस बरामद। तर्जमान ANF के मुताबिक मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। तहकीकात जारी।
फोर्ट कासिम पर FIA की कार्रवाई, भारतीय अमले के 2 अरकान के मशकूक सीमेंट बुक्स बरामद। तर्जमान के मुताबिक जहाज इंडोनेशिया से पोर्ट कासिम पहुंचा था। भारतीय शहरियों के पास भारतीय नेशनल CDC और असल सीमेंट बुक्स मौजूद नहीं थे। दोनों अफराद पर फीकस 5 लाख रुपए जुर्माना आयद करने की सिफारिश। हाउस रेंट बंदिश के खिलाफ इंटरबोर्ड मुलाजमीन अदालत जा पहुंचे। हाउस रेंट खत्म करने का नोटिफिकेशन चैलेंज, मौक़िफ़ अपनाया। करारदाद के मुताबिक हाउस रेंट बहाल किया जाए। किराए की रकम रोकने पर अदालत का नोटिस। सूबाई हुकूमत और बोर्ड हुकाम से जवाब तलब। समाअत 10 जून तक मुलतवी। टैबलेट स्मगल करने का इल्ज़ाम, अदालत ने 2 मुल्ज़िमान रज़ा अली और एजाज अहमद की ज़मानत मंजूर कर ली। दोनों मुल्ज़िमान को ज़मानत के एवज़ 5-5 लाख रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म। अदालत ने इस्तफ़सार किया, मुल्ज़िमान के खिलाफ अगर दूसरा मुकदमा नहीं है तो इन्हें ज़मानत पर रिहा किया जाए। डेंगू कंट्रोल प्रोग्राम के मुलाजमीन की तौहीन अदालत की दरख्वास्त, अदालत का पहले से जारी करदा हुक्म पर अमल दरामद रिपोर्ट या सेक्रेटरी हेल्थ को ज़ाती तौर पर पेश होने का हुक्म। वकील ने इस्तफ़सार किया, 2014-15 में मुलाजमीन कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती किए गए। 2 हफ्ते में नाम कमीशन को इरसाल करने का हुक्म। अमल दरामद की रिपोर्ट तलब, सेक्रेटरी सेहत ज़ाती तौर पर अदालत में पेश होकर वजाहत करें। पांच लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक दरख्वास्तों पर समाअत। जिस थाने के हुदूद से शहरी गुमशुदा हुआ है उसी थाने में मुकदमा दर्ज किया जाए। अदालत ने गुमशुदा शहरियों की रिपोर्ट तलब कर ली। गुमशुदा शहरी की तफसीलात तफ्तीशी अफसर को फराहम करने की हिदायत भी कर दी। सदर के मुख्तलिफ इलाकों में गैर कानूनी तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाई। असिस्टेंट कमिश्नर सदर गजनफर पर दाद की क़यादत में ऑपरेशन किया गया। करम अली टालपुर रोड, शारा लियाकत और दाऊद पोता रोड पर गैर कानूनी पतारों और तजावुज़ात का खात्मा कर दिया गया। ट्रैफिक की रवानी बेहतर बनाने के लिए कार्रवाइयाँ जारी रखने का ऐलान। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी फरीज़े हज की अदायगी के लिए रवाना। हज की अदायगी के बाद रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी के लिए जाएंगे। मुल्क व कौम की तरक्की और इस्तेकाम के लिए खुसूसी दुआएं भी करेंगे। और चाय सिर्फ जायका ही नहीं, एहसासात की खुशबूदार कहानी है। दिन का आगाज हो या शाम की थकन, एक कप चाय हर कैफियत को खुशगवार बना देती है। दुनिया भर में आज चाय का आलमी दिन मनाया जा रहा है। चाय को उम्मुल मशरूबात भी कहा जाता है, जो थकन भी उतारती है और दिल भी जोड़ती है। चाय मशरूब नहीं, रोजमर्रा जिंदगी का खूबसूरत हिस्सा बन गई है। चाय का इस्तेमाल से उस नमी के तनासुब को जिस्मानी तौर पर लेवल करने के लिए चाय का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी भी होता है। चाय के हवाले से ये कहती हूँ कि चाय वैसे तो दिमाग को खुशक करती है, लेकिन अगर मियाँ को शौक हो तो फिर तो बनानी पड़ती है। बिल्कुल ऐसा है, चाय के बगैर तो दिल ही नहीं लगता, ना आंखें खुलती हैं ना कोई काम होता है। थक जाए चाय, उठ जाए चाय, चाय 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 चाहिए।